Hello students and welcome back. This is the part 2 of Letter to God for class 10th. The complete summary, the complete chapter along with the textbook questions and easy to understand video. I hope आपने part 1 देख ही लिया होगा. If you have seen that, you may have understood what I am trying to teach you, what I am making you understand. If you have liked the videos, do subscribe to my channel and I will keep me motivated so that I keep on publishing such videos for you. हमने part 1 में इस letter to God के chapter का starting part कर लिया है till the comprehension questions of 4 questions which came. So अगर आपने वो starting से chapter देखना है तो please look at the suggested links on the top on the video and you will be able to go to the part 1. So we have completed till this oral comprehension check and we are going to start the rest of the chapter from this paragraph, that is but in the hearts. Okay students, let's quickly begin without wasting much of time. So but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. So students, हमने पहले पढ़ा था लेंचो was a farmer, उसकी कॉर्नफील्ड थी, उसके घर से उसकी पूरी कॉर्नफील्ड दिखती थी और ही वॉज होपिंग कि बारिश होएगी, उसकी कॉर्नफील्ड अच्छे हार्वेस्ट देगी एंड ही वुड बी एबल टू सेल इट इन द मार्केट, अर्न गुड प्रॉफिट. एंड व्हेन रेन स्टार्टेड ही लुक्ड एट देम the raindrops as new coins because that will convert his field into a profitable money. But later, because of strong wind, the hailstorm came and destroyed his crops and he saddened and he was hopeless. Now, but in the hearts of all, उस अकेले घर में जहाँ पे लेंचो रहता था, वैली के बिल्कुल बीचों बीच in the middle of valley, उन सब के दिल में सिर्फ एक ही होप था, help from God. So, हम भी जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं परेशान हो जाते हैं, वी ऑलवेज रीच आउट टू अवर पेरेंट्स, टू ब्रदर्स, सिस्टर्स, जो हमारी हेल्प कर सकता है हम उसके पास जाते हैं. और जब हमें दिखता है कि कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, देन वी हैव गॉड, वी से कि भैया भगवान ही हमारी अब मदद करेगा. सो जैसे हम सबको होप होता है हेल्प फ्रॉम गॉड, वैसे ही सबके दिलों में जो उस घर के अंदर रहते थे उन सबके दिलों में भी एक ही होप था, हेल्प फ्रॉम गॉड. नाउ the chapter says, don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. वो कहते हैं कि हाँ, सब कहते हैं कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि सब कुछ लॉस है, everything is gone, the crops have been destroyed, I don't have any crops to sell, I may not make any profit. लेकिन हम याद रखिए कोई भूख से नहीं मरता. No one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात भर लेंचो जो फार्मर था उसने एक ही अपनी उम्मीद का बारे में सोचा कि भगवान मेरी मदद करेगा. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो जो उसको पता था कि जैसे हम भी कहते हैं ना, भगवान सब देखता है, भगवान सबको देखता है, अच्छे बुरे क्या हो रहा है, भगवान हर जगह है. सिमिलरली लेंचो भी यही सोचता था, या उसको जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया था या उसको पढ़ाया गया था या बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा कि भगवान सब कुछ देखता है. इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, आपके दिल के अंदर की बात को भी भगवान सुन लेता है. लेंचो वॉज एन ox of a man working like an animal in the fields. Ox of a man मतलब ox होता है, आपने देखा होगा खेतों में जो हल चलाने के लिए बुल का सहारा लिया जाता है, ox उसको कहते हैं. तो ox of a man, जैसे कि बुल से इतनी मेहनत करी जाती है, हल चलाया जाता है, वैसे ही लेंचो जो फार्मर था, he was very hard working, बहुत मेहनत करता था. He was an ox of a man, working like animal in the fields. और जैसे कि एनिमल्स काम करते हैं फील्ड्स में, वैसे काम करता हुआ. But still he knew how to write. लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था.
ये यहाँ पे ये इसलिए बताया गया है कि लेंचो हालांकि फार्मर था और बिल्कुल जानवरों की तरह सुबह से शाम मेहनत करता था, लेकिन तब भी उसकी इतनी पढ़ाई लिखाई आती थी कि वो लिख सकता था। द फॉलोइंग संडे, यानी कि जिस दिन ये ओले गिरे उसके बाद जो संडे आया, एट डे ब्रेक मतलब जब दिन में काम करते हैं लोग, 2 दिन में खाने के लिए ब्रेक लेते हैं या रेस्ट करने के लिए ब्रेक लेते हैं, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वो उसने कहा कि मैं खुद ही इसको लेके जाऊंगा टाउन में और मेल में, मतलब कि पोस्ट ऑफिस में डालूंगा या मेल बॉक्स में डालूंगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ भी भगवान की तरफ लेटर लिखने से कम नहीं था, और भगवान को लेटर लिख रहा था बेसिकली। देखते हैं अब क्या लिखा है लेंचो बेचारे ने। गॉड, ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भगवान अगर आपने हमारी मदद नहीं करी तो मेरी जो फैमिली है वो भूखी जाएगी। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है। वॉट इज़ अ पीसो? पीसो इज़ अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी है, जैसे यहाँ पे रुपया है वहाँ पे पीसोज है। उसने कहा कि भगवान मुझे 100 पीसोज चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, मतलब कि उसने सारी कहानी लिख दी कि भगवान मुझे 100 पीसोज चाहिए जिससे कि मैं अपनी कॉर्न की फील्ड को दोबारा से सो कर सकूं और तब तक जी सकूं जब तक मेरी क्रॉप दोबारा ना आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट का मतलब कि मेरी सारी उसने कहानी लिख दी कि ओले गिरे, मेरी क्रॉप खत्म हो गई, बिकॉज द हेलस्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड माई क्रॉप्स। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, जिसके अंदर ये चिट्ठी उसने एनवलप के अंदर डाली, उसके ऊपर उसने लिखा टू गॉड, मतलब कि जब आप चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं कि इसको भेजनी है। ही जस्ट रोट टू गॉड। ही पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, मतलब अभी भी परेशान था लेकिन दुखी था। उसने अपनी जेब के अंदर उस एनवलप, उस लेटर को रखा, दुखी मन से वो टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस में जब भी आपको लेटर भेजनी होती है तो आपको स्टैंप लगानी पड़ती है, आज भी लगानी पड़ती है। उसने स्टैंप लगाई और मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी कि जैसे कि पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय, द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, पोस्टमैन भी था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, हंसता हुआ, मतलब भी कौन भगवान को चिट्ठी लिखता है, वो उस लेटर को उसने देखा होगा और अपने बॉस के पास गया जोर से हंसता हुआ। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कहा भाई अपने बॉस को, भाई मेरे को पूरे अपने कैरियर में ऐसा मैंने लेटर नहीं देखा कि भगवान को एड्रेस किया हुआ। द पोस्ट मास्टर, अ फैट, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, थोड़ा मोटा और फ्रेंडली और प्रेजेंट जो पोस्ट मास्टर था, फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से था, हाँ भाई कौन भगवान को लिखता है लेटर, क्या यार किसने लिख दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट लेकिन हंसते हंसते वो एकदम से सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसने उस लेटर को टेबल पे 1-2 बार टैप किया। वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने कहा क्या विश्वास है भगवान पे इस आदमी का जिसने ये लेटर लिखी है, काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता, मेरे में अंदर ऐसी भगवान की तरफ विश्वास होता कि मैं भगवान से कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि लेटर लिख के बात करने की कोशिश कर सकता। सो बेसिकली ही वॉज प्रेजिंग कि भैया हंस तो रहे थे, ये कौन लिखता है लेटर गॉड को, लेकिन दे वर प्रेजिंग कि क्या विश्वास है, व्हाट फेथ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि अब राइटर कौन है यहाँ पे, लेंचो बेचारा हमारा फार्मर,
कि उसका भगवान से विश्वास ना हट जाए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर जो फैट और हंसमुख इंसान था, बॉस जो था पोस्टमैन का, उसको एक आइडिया आया कि मैं इस लेटर का आंसर करता हूँ। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो उसने कहा कि मैं आंसर करता हूँ भगवान बन के कि हाँ भाई तुमने मेरे को लेटर लिखी है और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। लेकिन जब उसने लेटर खोला, लेटर में क्या था, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, लेंचो फार्मर हैड रिटन टू द गॉड, गॉड आई नीड 100 पीसोस सो दैट आई कैन सो माई फील्ड अगेन। सो अब उस लेटर का रिप्लाई तो तभी जा सकता है कि भगवान कुछ पैसे भेजे। सिर्फ गुडविल और लिखने से तो कुछ काम चलेगा नहीं पोस्ट मास्टर से। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन वो फिर भी पोस्ट मास्टर जो था उसने अपने उस हल को कि मैं लेटर का जवाब दूंगा उस पर स्टिक किया। ही आस्क्ड फ्रॉम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। अपने काम करने वालों से उसने बोला कि मुझे कुछ कुछ पैसे दो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट उसने डाला और बाकी दोस्तों से ओब्लाइज करवा के अपने आप को कुछ चैरिटी के नाम पे पैसे इकट्ठे करे कि भैया ये चैरिटी के नाम पे कुछ पैसे दो। It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. Half होता है 50 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it letter containing only a single word as a signature, God. तो उसके लिए जो 100 pesos की रिक्वेस्ट करी थी लेंचो ने वो तो मुश्किल था, लेकिन जितना इकट्ठा हुआ वो हाफ से कुछ ज़्यादा था, यानी कि 50 पीसों से ज़्यादा था। आगे पढ़ेंगे कितना था। ही पुट द मनी इन एन एनवलप। उसने वो एक पैसा जो था इकट्ठा हुआ एक एनवलप में डाला और लेंचो को एड्रेस कर दिया और एक लेटर जिसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा एज अ सिग्नेचर गॉड और कुछ नहीं लिखा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगेन वी हैव ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। यहाँ पे हमने पहले जैसे किया था पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन भी करेंगे। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, हु रेड द लेटर एंड व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। वी विल नाउ डू दिस बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एंड होपफुली हम इस पार्ट 2 में ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स वी हैव द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, यानी कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं आपके क्लास में टीचर आपको पढ़ाती हैं, ये यूजुअली उसी टाइम आपसे पूछा कि स्टूडेंट्स टेल मी एंड टीचर कैन आस्क एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये अटेंशन कि आपने अटेंशन दी है कि नहीं अब तक जो पढ़ा है उसके ऊपर आपका चेक होता है। सो लेट्स सी इफ़ यू कैन रिमेंबर। हालांकि मैं आंसर आपको बताऊंगा। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू। तो इसका मतलब है, सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि लेंचो को किसके ऊपर विश्वास था, फेथ था, और उसने क्या किया। सोचिए स्टूडेंट्स, आई थिंक यू मस्ट हैव गेस्ड एनीवेज। मैं बताता हूं। लेंचो हैड फेथ इन गॉड एंड व्हाट डिड ही डू, ही wrote a letter to the god asking for help of 100 pesos so that he can sow the cornfield again and till the time the crops are again harvested he can survive. तो उसने कहा भगवान को के ऊपर विश्वास था, उसने भगवान को एक लेटर लिखा, भगवान मुझे 100 पीसों दे दो जिससे कि मैं जो कॉर्नफील्ड है उसमें दोबारा से बुआई कर दूं, कॉर्न लगा दूं और मैं अपनी ज़िंदगी चलाऊं। हु रेड द लेटर, तो हमने अभी पढ़ा था लेंचो went to the town with the letter into the post office, stamped it and dropped in the मेल बॉक्स, और पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मेल बॉक्स होता है उसमें डाल दिया पोस्ट बॉक्स में। और वहाँ का जो पोस्टमैन था जो वहाँ पे हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस में, सबसे पहले वो उसने लेटर पढ़ा। हु रेड द लेटर, द पोस्टमैन रेड द लेटर एंड देन ही रीच टू हिज बॉस विद द पोस्ट मास्टर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ही टुक द लेटर टू हिज बॉस विच इज his boss. So पोस्टमास्टर ने क्या किया, पहले तो लेटर पढ़ा, और पोस्टमास्टर कौन है, फैट एमिएबल। तो पोस्टमैन पोस्टमास्टर के पास ले गया
जो उसका बॉस था. सो व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन? जब पोस्टमैन ने लेटर पढ़ा और ज़ोर से हंसा और अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर के पास ले गया, तब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया. पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड होल हार्टेडली, बहुत ज़ोर से हंसा कि वाह, कोई भगवान को कैसे लेटर लिख सकता है. देन ही बिकेम सीरियस, कहता काश ऐसा, आई ऑल्सो हैव फेथ इन द गॉड. और उसने उसका रेजोल्यूशन यानी कि उस लेटर का जवाब देने की सोची. सो ही वॉन्टेड टू रिस्पॉन्ड टू द लेटर which was addressed to the god. And what did he do? He collected money because Lencho had requested God to give him 100 pesos. उसने अपनी सैलरी में से कुछ पैसा और अपने कोलीग से कुछ पैसा इकट्ठा करके collected money as a charity and more than little 50 pesos यानी कि more than half कलेक्ट करके उसने उस लेटर एनवलप में डाला और सिर्फ साइन कर दिया गॉड और लेंचो को एड्रेस कर दिया. Now let's proceed further. The following Sunday यानी कि जिस संडे को लेटर लेंचो ने पोस्ट ऑफिस जाके डाला, उसके अगले संडे came a bit earlier than usual. पहले तो डे ब्रेक में आया था, लेकिन इस बार वो थोड़ा जल्दी आ गया. To ask if there was a letter for him. पोस्ट ऑफिस में पूछने की उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया है, बिकॉज उसको लगा कि भगवान को मैंने लेटर पिछले हफ्ते लिखा, एक हफ्ता हो गया है, तो जवाब आ गया होगा. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ. पोस्टमैन जिसने उसकी लेटर पहले पढ़ी थी और अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर को दी थी, वो वहीं पे था. उसने हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और पोस्टमैन जिसने सबसे पहले लेटर पढ़ा था, उसने उसको लेटर हैंड ऑफ किया और पोस्ट मास्टर दूर से उसको देख रहा था और एक्सपीरियंस कर रहा था. कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन. जब लेंचो को लेटर मिला तो वो सेटिस्फाइड हुआ, भगवान का लेटर आया है, उसको सेटिस्फैक्शन हुई. तो वो एक्सपीरियंस कर रहा था कि मैंने जो अच्छा काम किया है, मैंने परफॉर्म जो गुड डीड करी है, लोगों से पैसा इकट्ठा किया है, अपनी सैलरी में से इकट्ठा किया है, उसके कारण सेटिस्फैक्शन इसको मिलेगी. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. उसको हैरानी नहीं हुई. Such was his confidence. मतलब उसको भगवान पे इतना विश्वास था कि he was expecting कि मेरे पास रिप्लाई आएगा और मेरे पास पैसे आएंगे. तो जब उसने देखे पैसे, he was not surprised. उसने कहा हाँ, ये तो आने ही थे, मेरे भगवान ने मुझे भेजने ही थे. But he became angry. लेकिन उसको गुस्सा आया when he counted the money. Because हमने पढ़ा था पोस्ट मास्टर could only arrange for little more than half, यानी कि 100 मांगे थे, little more than half 50 पीसों से थोड़ा ज़्यादा. God could not have made a mistake. कहता भगवान गलती नहीं कर सकता. Nor could he have denied Lencho what he had requested. और ना ही भगवान मना कर सकता है कि मैंने 100 पीसों मांगे थे, मुझे क्यों नहीं मिले भाई. तो वो गुस्सा आया उसको, ये भी कहाँ गए मेरे पैसे, भगवान ने तो 100 ही भेजे होंगे. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. वो इमीडिएटली गुस्से में खिड़की पे गया और उसने बोला कि मुझे पेपर और इंक दो, मुझे पेपर दो और मेरे को लिखने के लिए इंक पेन दो या इंक दो. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे सब लोग लिख के बैठ के लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट. वो लिखना शुरू हुआ विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. मतलब जब गुस्सा आता है तो ऊपर नीचे आप ब्रोज करते हैं, ऐसे करता हुआ उसने लिखना शुरू किया. Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed. उसने फिर से लिखने के बाद स्टैम्प ली और लिखी और उस लेटर के एनवलप में डाल के उस पर चिपका दी. एंड विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जब गुस्सा होता आदमी, जैसे आप टेबल पे मुक्का मारते हैं जोर से, उसने वो टेबल पे रखी एनवलप के ऊपर स्टैम्प लगाई और जोर से मारी. He was expressing his anger because he received less than the 100 pesos from the God. What he was thinking कि भाई भगवान ने 100 पीसों से कम कैसे भेज दिए. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to it and opened it. जैसे ही उसने मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर उठा, जो कि पोस्टमैन का बॉस था, और उठा. It said God, यानी गॉड, ये किसने लिखा है? लेंचो ने, गुस्से में जब लिखा. Of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. उसने कहा
मैंने आपसे 100 पीसोज मांगे थे, मेरे पास सिर्फ 70 पीसो पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भेजिए. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे वो चाहिए. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये मेल के थ्रू ना भेजिए. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. लेंचो यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो मक्कार हैं, उन्होंने ही पैसे चुरा लिए होंगे, उसको लग रहा था, और कह रहा था भगवान को, भगवान पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, डायरेक्ट मेरे को भेजना. ऑलराइट, now we have again two oral comprehension check. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? What made him angry? Okay, now the answer for the first, no, Lencho was not surprised to find a letter for him with money in it, because he had full confidence and faith in God that God will reply to his letter and also send him the money as requested. What made him angry? The fact that the money received by Lencho was not 100 pesos what he had requested, but less than 100 pesos made Lencho angry. I hope आपके दोनों ये आंसर आ गए हैं. अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, everything is there, all questions are there. So this brings to the all of the chapter end, and now we have all the questions and fill in the blanks and everything. So we are going to cover that also. I will cover all of these, and I will also add the multiple choice question in the last and final part of this chapter. The first part 1 and part 2 was just reading about the chapter and understanding the content. तो यहाँ पे ये chapter खत्म हो गया है, letter to God. So this only covers कि लेंचो का फेथ कितना था, उसने भगवान को रिक्वेस्ट भेजी, उसको कम पैसे आए और उसने अपना गुस्सा कैसे जाहिर किया. I hope you have enjoyed this video. Do stay tuned in and watch the last and final part of this video, in which I will cover all the questions and answers and multiple choice questions and RTC based on this chapter. And students, to complete this chapter, एक ये छोटा सा summary आप समझ लीजिए. A letter to God. It is a story about one's faith in God. ये भगवान के ऊपर एक विश्वास की कहानी है. And existence in of humanity and kindness. तो जो faith in God है वो लेंचो के ऊपर डिपेंड करता है. Existence of humanity and kindness ये पोस्ट मास्टर की दिखाई है. Lencho, a simpleton यानी कि simple farmer, faced loss due to hailstorm but was optimistic that God would help him. लेकिन उसको यकीन था कि भगवान उसकी हेल्प करेगा. He wrote a letter to God asking for 100 pesos to sow new seeds and make his both hands meet, and dropped it in the mailbox. The letter was shown to the postmaster by a postman. जब postman ने पढ़ के postmaster को दिखाया. To keep Lencho's faith in God intact, he came up with an idea. कौन? Postmaster came with an idea. He himself contributed the money, seeked help from the employees and his acquaintances, and could arrange 70 pesos, kept them in the envelope and signed it as God. और उसने उसको Lencho को एड्रेस कर दिया. Lencho came, opened the envelope, found 30 pesos less and became angry. 30 पैसे कम मिले और गुस्सा आ गया. Because he believed भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक और लेटर लिखा. Requested to send remaining pesos but not through the mail, but ironically called the employees as bunch of crooks. जिन्होंने पैसे दिए, जिसने हेल्प करी, उन्हीं को उसने bunch of crooks कहा. और यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो गई.